अभी एक अच्छी नींद के लिए यू विल फाइंड दैट यू विल हैव टू एंश्योर दैट देयर इज नो डिस्कम्फर्ट टू बॉडी एंड माइंड. व्हेन यू आर स्लीपिंग बॉडी और माइंड को डिस्कम्फर्ट नहीं हो. कैसे होता है डिस्कम्फर्ट बॉडी को? जैसे कि बहुत गर्मी लग रही है तो आप क्या करोगे? फैन एसी ऑन करोगे. बहुत सर्दी है तो क्या करोगे? हीटर लगाओगे. लाइट है तो आप लाइट को बंद करोगे. तो यू विल ट्राई टू मेक इट कंफर्टेबल. अगर आपका बॉडी और माइंड सोते समय डिस्कम्फर्ट में है तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी. तो आज क्या हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली हम ये दोनों चीज को डिस्कम्फर्ट में कर रहे हैं. पहले क्या होता था, क्योंकि ज़्यादा बिजली नहीं होती थी तो लोगों का लाइफस्टाइल में जल्दी खाना खाते थे और सो जाते. कुछ इन्फॉर्मेशन आया तो कुछ देर तक तो माइंड उसके ऊपर चलता रहेगा ना, तो काफ़ी देर तक माइंड उसके ऊपर सोच रहा है. तो आपने दोनों को डिस्कम्फर्ट करके सोए, तो नाउ दिस विल affect your quality of sleep. So I'm just going into the most important thing. So how does this thing work is, when a person is sleeping, you may connect a lot of instruments and you see the brain waves कैसे वेरी करती है. तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है EEG. तो हम लोग देखते हैं कि जब व्यक्ति सोता है तो माइंड, ब्रेन है ना, 4 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में चलता है: बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा. So beta is when you are awake, mind is awake, so it is a higher frequency. Then when you are about to sleep, तो comfortable हो रहे हो तो mind एक level नीचे अल्फा. फिर जब नींद आती है तो mind और एक level नीचे थीटा. फ्रीक्वेंसी आप देखें 5 से 8. And for some time in the entire sleep, you are in deep sleep, that is called delta frequency. Sunday Talk at Shanti Sarovar. Om Shanti. Good evening, everyone. How many of you are regular attendees of Sunday evening talk? Raise your hand. Raise your hand. Most of you, right? Okay. How is everyone doing today? Good? Just good? It's beautiful weather, right? It's raining. It was raining at least. Yeah. How is doing? Good or great? Great or awesome? Terrific? Who all are doing great here? Terrific. Very good. So, Brahma Kumaris welcome you all to the beautiful campus of Shanti Sarovar and this event, Sunday Evening Talk. Sunday Evening Talk is a weekly event that happens every Sunday from 6:30 to 8 o'clock, where we discuss around various day-to-day life topic, right? We discuss about what to do about stress management or sleep management or family chaos, office chaos. Sometimes we invite doctors. Yes? Who all have attended these programs already? Okay, great. And the speakers that comes here are from Hyderabad, India, and sometimes all over the world, right? So today, what is the topic for today? Who can tell me? Acha, it's managing stress and sleep. How many of you get good sleep already? Raise good hand. Today we are in the class. Yes. Getting good sleep already. Who all are facing some issue in your sleeps? 1, 2, 3, 4. Okay, 50-50 kind of crowd. How about stress? Who all feels, a little stressful? Okay, fine. So today we are going to talk about sleep and stress management. And not only that, we have a bonus. We are going to hear about Navy experiences. So today, we have someone who has joined the armed forces in July 1992 through NDA and was commissioned in Indian Navy on July 1st, 1996. Excited? Yes? Okay. He has done his BSc, BTech, MTech in Electronics and Communication, PG Diploma in Value Education and Spirituality, MBA in Self-Management and Crisis Management. He is presently posted in Delhi at DRDO headquarters. He has served in various operational staff training, R&D appointments in Indian Navy, including a tenure on board aircraft carrier INS Virat.
Captain Shiv Singh has been coming to Brahma Kumari's meditation centers with his parents right from his school days. He has been actively involved with the activities of Security Services Wing right from the beginning when the wing was formed in 2001. Also, he's been serving the personnel of military, paramilitary, and police personnel. He has contributed immensely for conducting SSW programs in a structured manner, especially amongst the paramilitary forces. If you don't understand these terms, you will in some time. Okay? As part of SSW teams, he has participated in programs for Indian Army, Air Force, Navy, Coast Guard, BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, NDRF, NSG, RPF, and list goes on. Yeah. The various subjects that he has already took lectures on stress management, sleep management, managing challenges, karma philosophy, mental empowerment, science and spirituality, and many more. So you all are excited to listen to him about sleep and stress management, and more importantly, about his experience of Navy. So with huge round of applause, please welcome Brother Captain Shiv Singh. Welcome, brother. Shall we give another round of applause? Thank you. Om Shanti and good evening. So all of you are enjoying the weather. I am presently posted at Delhi. So yesterday when I came here, so in the night when I was switching on the fan, it was feeling cold. I was surprised that in this time it is feeling cold. At least Delhi it is very hot. So my reason for being here is, as the sister mentioned, I am in the forces, and we are having two programs for the security forces in this campus day after tomorrow. One is on 4th and one is on 5th. So I'd specifically come for that program, and I've got this opportunity to interact with you. In Delhi, I go to the Brahma Kumari's branch at the Harinagar branch. And I remember in my last posting, when I was there for 5 years, we used to have this Sunday evening talk. It's very popular. I saw a lot of people who generally, they don't come, but for the Sunday program, they used to come because always there used to be some kind of new topic. So we had a lot of this karma philosophy in various parts, science and spirituality, managing anger, managing stress, and a lot of programs. Every Sunday we used to have some new topic. So it had its own fan following. So today we've come here for a topic which is slightly different. Managing stress is not important. That is stress management. You'll find a lot of people talking about. But sleep is a very interesting subject. And it's interesting because we all spend a lot of time in this one activity. I would say this is one activity in which we spend the maximum time. Anyone knew any other activity, one single activity in which we spend so much time besides sleep? Huh? Mobile phone. Okay. Huh? More than 8 hours. Okay. Then it is a strong competitor. Otherwise, the sleep is one thing right from birth. Probably at that time at least mobile is not there, and right till the person dies, the sleep is every day's activity. So we are spending a lot of time in this activity, and yet we know very little about it. You'll be surprised. We don't know much about it. If I ask you a simple question, how much should we sleep? एक व्यक्ति को कितना सोना चाहिए एक दिन? 8 to 9 hours. Okay, anything else? 6 hours. It depends upon body. Of course, there will be some variation, but generally. Okay, and if the next question, if I had asked you, how much do you sleep? What is the general answer? How much you are able to sleep? So generally what, 6 to 7 hours?
7 to 8 hours. These answers would be in this range. Where anybody's got some extreme answers. Maximum somebody would say maybe at the lower end maybe 5 to 6 hours. Higher end maybe somebody would say 8 to 9 hours. Someone in this range only. But sleep theory says all these answers are wrong. Nobody sleeps for 5 hours and nobody sleeps for 6 hours. So why I'm making this statement we will understand later. And the next part was since I am in the Indian Navy, I was told that you should share some experiences of the Indian Navy. But more important, in my introduction also, one unique thing was that I was associated with the spiritual organization since my school days. So that was I would say it was a big boon for me. And the difference because of meditation and this thing, I felt it at that time when I was in school. My father was also in the Indian Navy. He retired as a commander. And naturally, since my father was in the Navy, we used to keep getting posted. My father was an ATC officer, air traffic control. So in the Indian Navy, we have these aircraft carriers on which you have these planes and helicopters. And of course, the airport at Goa and airport at Cochin, these two are under naval control, even the airport at Vizag. Now I believe there's a new airport that has been inaugurated. Today we had a program and governor was mentioning yesterday I think PM Modi had inaugurated one more airport there. So in my school time I was one of the weak students, let's say I used to come first, second, third from behind. If 30 students are there, then my ranking used to be that. So after some time, my father got posted to Bombay. And my father was in this touch of the spiritual organization since before that. When we were in Bombay, that time I was very small. We went to Cochin and after a few years, we came back to Bombay. So my memory actually with the spiritual organization started when I went to 5th class. So when I went there, the sister said, I and my 2 elder brothers were there. So that sister said that you should learn meditation. We were small, so meditation में क्या करना होगा? तो she said कि आप लोग को 7 days का कोर्स करना होगा. तो क्या करना होगा 7 days के लिए? तो बोला every day half an hour आना है आपको सिखाएंगे. तो 3 students 5th 8th 10th ऐसा क्लास. बट हमने मेडिटेशन सीखा और हम लोग केंद्रीय विद्यालय में भी है ना, उधर से 1 से पोस्टिंग हुई, इधर केंद्रीय विद्यालय था. तो नेक्स्ट टाइम 5th स्टैंडर्ड का जो हाफ ईयरली रिजल्ट आया, सो आई केम फर्स्ट रैंक. सो मैं पीछे से फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था. तो अभी आगे से माय फादर ना व्हेन बिगनिंग में जब उन्होंने देखा कि, तो ही हैड सेड because consistently I was performing in the bottom, so he was sure that I'll never be able to do good. So at that time he said, any time in your life, if you come first, second, third rank, whatever you ask, I will give you. Because he was 100% sure ये तो कभी होगा नहीं. But then he was surprised. फिर half yearly था तो फिर final हुआ, उसमें भी I came first. So after that I used to come in the top 3. तो and of course I could have told my father सारी property मेरे नाम पे लिख दो और सब. Anyway, as kid, what do you ask? I remember first time I asked was table tennis racket. Second time skates ka board, something else. But this meditation made such a big difference in my school life when I was a student. So naturally, that was one thing which I kept with me, despite after 12th standard when I joined NDA and I joined the forces. The moment you join NDA, anybody who's got force background here, armed forces background? Acha, merchant navy, somebody who's connected, police. Okay. So in armed forces, you can join as an officer. Several ways are there, but the most difficult way and the best way. Today, the chief of army staff, of chief of naval staff, the highest ranks will be by a person who's from National Defense Academy. That is sure.
So it's the most tough training also. So after 12th, when I joined there, so the next 4 years, 3 years in academy and then 1 year at our ships. It was, matlab it was a sea change. I mean, because in 12th standard at school, you know, you're mama's boy, you don't do anything, you're just enjoying. And suddenly you go in an environment where everything you have to do, there's very little time, so many activities. Then you get to know your one's own capability. In 24 hours, you can do so many things. So many things. Because right from morning till night we used to be just कभी ये आया, अभी ये हुआ, फिर उधर गेम्स की बात, फिर इधर आए, वहाँ मतलब अपना ही यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ, कपड़े भी खुद धुलाई करना, ये करना, वो करना. नेवी में होने के कारण हमारे ड्रेस भी वाइट होते थे, टू मेंटेन वाइट इज अनदर चैलेंज. So it was a very this thing, but it taught you a lot of things, because that knowledge and that this thing helped me later in my service. When you get responsibilities and there are multiple jobs, so that time this training helped me a lot, you know, because then you understand your capability कि बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो. तो नेचुरल नेवी में ज्वाइन किए, ऑफिसर बने. But despite being in military and going in military from the the toughest entry, I never left my connection with the spiritual organization, with this meditative lifestyle. And here every day morning meditation करते हैं. That is because that is one time which is with you. बाकी समय तो आप कई और काम होते हैं, लेकिन सवेरे का टाइम आपका होता है. So that thing, that lifestyle I maintained even in my military life, and I got posted in a lot of places. So my first appointment was on an aircraft carrier. You know, Navy's got the biggest ship, which is called the aircraft carrier. That time we had this INS Virat, which is now retired, decommissioned. We call it decommissioned, and of course, some time before that there was Vikrant, which also was decommissioned. And today we have two aircraft carriers. One is called Vikramaditya, and the second, which is first time we have built in India, which again we have renamed it as INS Vikrant. You know, in Navy there is a tradition: a ship never dies. So once a ship gets decommissioned, after some time you will have a new ship which will have the same name. So we generally refer, this is the old Virat, old Vikrant, this is the new Vikrant, you know, that way. But the name, legacy of the name continues. So I was posted on this aircraft carrier, and now when I say Navy, so Navy gave me understanding of this, because Navy is all defense is about technology and everything. So 2-3 things which are so amazingly different from our civilian lifestyle. One is the technology, the complexity of the technology. You know, it's even difficult to imagine. Now I'm speaking of quite some time back. So I was a technical officer. So I was maintaining the guns and missile system. So we had a machine gun. Now everybody of you have I would say you would have seen a machine gun, but definitely in films and all you are aware. Machine gun सबने देखा. अच्छा, मशीन गन की आवाज भी सुनी है. मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपको इमेजिन करना है कि 1 मिनट में मशीन गन कितनी गोली फायर करती होगी. 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, है ना. तो आप कुछ इमेजिन करें, टक 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 टक, सब मशीन गन का कुछ फायरिंग रेट होगा. 1 मिनट में मशीन गन कितना फायर करता होगा? कितना? 120. और कोई? 47. अच्छा, AK-47 है तो. हाँ, 150, 200. कोई और आंसर? So we had this gun which is called AK-630. This is actually a Russian gun, originally Russian gun, but today we also manufacture it. So it's a close-in weapon system. When I was on ship, this was one of my charters to take care of those guns. So it was a machine gun. And machine gun, you can 200 rounds, 300 rounds, 400 rounds. कितना करेगा? और उसके शेल भी थोड़े बड़े होते थे. नॉर्मल मशीन गन से उसके शेल बड़े होते थे. It used to fire in 1 minute
4,500 rounds. 4,000. So you can imagine what rate it is to fire. हम लोग बटन ऐसे दबा देते बूम 60 shells gone. So it's that fast, you know. So that's the kind of technology ना जो military life में मतलब it is beyond your imagination. I was posted in a place where we were looking after a communication system. तो कम्युनिकेशन के लिए हमको एंटीना की ज़रूरत होती है, ट्रांसमिशन के लिए भी और रिसेप्शन के लिए. पहले के मोबाइल में इफ यू सी देयर इज टू बी लॉन्ग दिस थिंग हैंडल. तो अभी बिकॉज वो जैसे जैसे हायर फ्रिक्वेंसी होती है तो एंटीना छोटा छोटा होता है, तो मोबाइल के अंदर ही मर्ज हो जाता है. एंटीना स्टिल देयर बट यू विल हैव द एंटीना ट्रांसमिटिंग स्टेशंस जो है ना बीच में, इसलिए कई जगह सिग्नल नहीं होता था, मतलब टावर नहीं है. तो वो एंटीना भी अलग अलग टाइप के होते हैं. यू विल फाइंड सम एंटीना विच आर राउंड, सम आर ऑफ वायर, अलग अलग शेप एंड साइजेस. सो वी हैड दिस एंटीना विच वॉज बिग. तो नेचुरली थोड़ा बड़ा होगा तो उसको ज़्यादा एरिया चाहिए. तो कितना एरिया चाहिए हमारे एंटीना को? अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि वो इतना बड़ा एंटीना है कि अभी ये हमारा ये कैंपस शांति सरोवर का आई थिंक 30 एकर्स में, 34 एकर्स. ओके, इफ आई से ना 34 एकर्स, नाउ यू हैव सम आइडिया कितना बड़ा ये है. सपोज आई से दैट वन एंटीना required so much space, half of शांति सरोवर. इतना बड़ा एंटीना होगा? हाँ, बट वो एंटीना पूरा शांति सरोवर जितना एरिया है उतना वो वन एंटीना के लिए हमको जगह चाहिए. तो कितना एरिया चाहिए? 34, लेट्स से 30 एकर्स है तो, है ना. तो कितना बड़ा एंटीना होगा? बट दैट इज रॉन्ग. वो एक एंटीना को 10 शांति सरोवर जितना एरिया चाहिए. कितना एरिया चाहिए? ओनली वन एंटीना 300 एकड़. एंड दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. एंड द फाइनल थिंग इज that one antenna required 3,000 acres. One antenna, 3,000 acres. कितना बड़ा एंटीना होगा? So this is beyond maximum imagination. Of course, that is the only antenna we have, the biggest antenna. Because as I said, the antenna का size जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है एंटीना साइज छोटा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है तो एंटीना का साइज बढ़ता है. So वेरी लो फ्रीक्वेंसी का तो एक ही एंटीना, बट इट इज बियॉन्ड एनीबडीज इमेजिनेशन कि वन एंटीना रिक्वायर्स सो मच ऑफ एरिया. वो एक वायर मेश की तरह पूरा उतना फैला हो. सीक्रेट तो नहीं है, मतलब तो अभी इंटरनेट इफ यू डाउन. बट तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट के पास, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में नियर कन्याकुमारी. I was in charge of maintaining that facility when I was there, posted there. So whether it is technology, whether it is the vastness, or whether it is the cost, money, the kind of money that we put in defense is unimaginable. So when I was posted on this Virat for 3 years, now this is also another marvel in the sense that it's so complicated. It's not like a merchant ship is what it is, more of a container ship. बड़ा सा एक डब्बा बना दिया, बड़ा है लेकिन बस उसमें. but warship is very different. It is very complicated क्योंकि उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स है, कनेक्शन कैसे होगा, ये होगा कैसे होगा. So I was there 3 years. I was there on that ship. तो यहाँ जैसे रूम होता है ना, तो वहाँ रूम को हम लोग केबिन बोलते हैं. जब टर्मिनोलॉजी इन शिप रूम्स को हम लोग केबिन बोलते हैं, तो लेट अस कॉल देम रूम ओनली. सो इन 3 years आई कुड नॉट सी ऑल रूम्स. I was there 3 years posted on that ship, but I could not see all rooms because नीचे से ऊपर it was 13 floor building.
9 floors, surface and below surface, and 4 floors above. So it's so complicated, that is why भारत आज़ाद हो गया और उसके more than 70 years now the first aircraft carrier we could build in 2022 उसका inauguration किया, उसका नाम हमने फिर विक्रांत रखा. So it is that kind of vastness and the complexity. So when I was posted on this Virat, so we had our concept is we should have 2 aircraft carriers because हमको वेस्ट में भी हमारा एक दोस्त है पाकिस्तान, ईस्ट में चाइना है, so we have to take care of both of them. But at that time we had only one this thing, so we were working for the other aircraft carrier. Now हमारा खुद का बनना, no, this is way back in 2003-4 की बात है, तो हमारे पास बनाने की उसमें कैपेबिलिटी नहीं थी, और बाहर से लाना खरीदना पहले तो लोग देते नहीं है ना. डिफेंस टेक्नोलॉजी एक चीज़ ये भी है कि दे डोंट गिव. सो व्हेन वी वर वर्किंग टुवर्ड्स दिस, तो रशिया इज अवर क्लोजेस्ट फ्रेंड. तो रशिया ने बोला कि वी हैव एन एयरक्राफ्ट कैरियर, जो हम लोग का नया एयरक्राफ्ट कैरियर था, बट स्टार्टिंग में उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो थोड़ा सा वो रिपेयर के लिए गया. माइनर, वन ऑफ द कंपार्टमेंट्स हैड अ स्मॉल एक्सप्लोजन, सो इट वेंट फॉर रिपेयर. उसके बाद दिस वॉज व्हेन सोवियत यूनियन वॉज देयर 90 में कहीं ऐसा. इट वॉज जस्ट कमीशन, न्यू शिप था, लेकिन उसके बाद सोवियत यूनियन का ये इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, तो उसके बाद उसको, बिकॉज एयरक्राफ्ट कैरियर को रन करना भी इट्स ए कॉस्टली अफेयर, सो दे जैसे कि मॉथ बोल्ड बोलते हैं उसको, रख देते हैं, सिक्योर करके रख देते हैं. तो वो वैसा हुआ रखा हुआ था, एंड दे सेड कि क्योंकि यू आर आवर फ्रेंड्स, सो वी विल गिव यू दिस शिप. बट सिंस फॉर फ्यू ईयर्स नाउ इट इज़ जस्ट लाइंग देयर. सो नेचुरली आपकी गाड़ी अगर बहुत टाइम नहीं होती तो आप क्या करते हो, उसको सर्विसिंग करना पड़ेगा, फिर कुछ चीज़ थोड़ा सा अपग्रेड भी करना पड़ेगा. पहले हमारे वो कैसेट डालते थे, फिर सीडी डालते थे, अभी वो पेन ड्राइव डालते हैं. सो सम थिंग्स अपग्रेड करना है, और मेनली सर्विसिंग तो करना होगा क्योंकि बहुत वर्षों से वो अभी यूज़ नहीं हुआ. बाकी शिप वॉज न्यू, सो वी एग्रीड, ठीक है. तो उन्होंने बोला कि शिप फ्री है, बस मेंटेन ये क्या सर्विसिंग का खर्चा. सर्विसिंग का खर्चा कितना है? 15,000 करोड़. अदरवाइज इट इज़ फ्री. सो द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी पुट इन, इट्स माइंड बॉगलिंग. तो अब with now I'm in military and I'm in navy and I'm looking after this technical this things. So how spirituality helps, अब spirituality अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह how you interact with people, it matters. So I'll give you one example of the same place which I said, it was the biggest antenna. So it was such a huge campus. We had such a huge campus. लोग तो कम थे बट कैंपस बहुत बड़ा था. सो वहाँ एक बार क्या हुआ, नाउ दिस इज सिंपल ह्यूमन रिलेशनशिप. सो वन ऑफ माई सेलर्स, जवान था, आई वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ दिस, दैट टेक्निकल वाला विच वॉज मेंटेनिंग दिस थिंग. सो वी हैव ए कमांडिंग ऑफिसर, 3-4 डिपार्टमेंट्स. द बिगेस्ट डिपार्टमेंट आई एम द हेड, and I have got people under me, and each department has got their own people. So one of my sailor जवान ना, तो he said कि सर मुझे शादी करना है तो मुझे परमिशन चाहिए. तो फोर्स में अगर इफ यू वांट टू मैरी यू हैव टू आस्क परमिशन, एंड परमिशन इज गिवन. इट इज जस्ट मतलब फॉर्मेलिटी, उसके रिकॉर्ड में फिर भी दैट वे इट्स अपडेटेड. सो ठीक है, कोई नहीं, शादी करना अप्रूवल था. सो उसको जाने इसके थोड़े से 2-3 दिन पहले, नाउ वी आर समवेयर इन तिरुनेलवेली ना, तो वी हैव अ फैमिली कमिंग फ्रॉम सम विलेज इन यूपी, तो एकदम नॉर्थ इंडिया से. हु कम्स, ए लेडी कम्स, ए स्मॉल चाइल्ड कम्स, एंड लेडी का एक कजिन ब्रदर है और उसकी मदर है ना. सो 4 पीपल कम, एंड वो हमारे उधर मिलिट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, तो गेट पर आते हैं, तो सिक्योरिटी वाले को बोलते हैं कि हमें कमांडिंग ऑफिसर से मिलना है. तो पूछा भाई कमांडिंग ऑफिसर से क्यों मिलना है, तो बोला नहीं हमारा बहुत ज़रूरी काम है, हम खास उधर से यूपी के वो गाँव से आए हैं. तो ठीक है, तो उनको फिर बुलाया गया, तो कमांडिंग ऑफिसर से मिलाया. तो देन दे सेड कि दैट लेडी सेज टू द कमांडिंग ऑफिसर कि आपके यूनिट में एक जवान है जिसका नाम है राकेश,
और मैं उसकी वाइफ, और ये मेरे 4 साल का बेटा, इस सन एंड ऑल्सो। सो नाउ वी कॉल राकेश, बिकॉज राकेश ने तो अभी अप्लाई किया है शादी करने तो ये कहाँ से आए? तो थोड़ा सा छानबीन किया तो राकेश ने बोला कि बात सही है कि शी इज़ माई वाइफ, हमारी शादी हुई, बट हमारा आपस में बना नहीं, एंड हमारा डाइवोर्स केस कोर्ट में चल रहा। तो उसको था कि डाइवोर्स तो हो जाएगा, और इसलिए मैं शादी कर रहा। तो फर्स्ट टाइम ही डिड नॉट इन्फॉर्म, सो इन आवर रिकॉर्ड्स वी वर नॉट अवेयर, बट नाउ लीगली शी इज़ द वाइफ और वो सन है। ठीक, तो फिर पहले तो उनको गेस्ट रूम में रखा। तो नेक्स्ट डे दी लेडी की मदर एंड दैट कजिन ब्रदर, बोथ ऑफ देम लेफ्ट, बिकॉज वाइफ, उसका बेटा इधर रख दिया, बिकॉज हस्बैंड इधर है, तो दे लेफ्ट। उसके नेक्स्ट डे दिस राकेश ही रैन अवे। अभी नाउ दिस लेडी शी इज स्टेइंग इन सम गेस्ट रूम एंड शी इज कम फ्रॉम अ विलेज, तो उसको इतना वो नहीं है, तो नाउ वो भाग गया। In forces, if somebody runs away, the rule is कि you wait for 7 days. 7 days you try to search कहाँ है क्या नहीं है। अगर 7 दिन तक नहीं आता then you issue a warrant. वारंट इशू किया तो उसके बाद वो पुलिस कहीं भी आएगी तो ही विल बी अरेस्टेड। तो वो लेडी को बताया कि भाई ही इज रन अवे, सो नाउ द बेस्ट थिंग विल बी आप अपने वापस विलेज चली जाओ, और जब वो आएगा तो हम आपको बताएंगे, या जब भी हम उसको पकड़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। नाउ द लेडी इज फ्रॉम अ विलेज, शी थिंक्स कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, शी थिंक्स कि वो हमने उसको कहीं छुपा दिया, एंड जेन्युइनली बिकॉज शी इज गाँव से आई है, उसको इतना नहीं समझ में आता कि हस्बैंड इधर था और अगले दिन बोल रहे कि भाग गया, तो ऐसा। नाउ शी इज एजिटेटेड कि नहीं नहीं आप लोग झूठ बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। तो अब उसको कितना भी समझाएं कि नहीं वो भाग गया है, आप प्लीज अभी आप वापस चली जाओ, अभी उतना दूर वो अपने आप भी नहीं जा सकती, वी हैव टू मेक सम अरेंजमेंट, किसी को साथ में भेजना पड़ेगा ये भी। बट नो, शी इज वेरी मच दिस थिंग, एंड वो एंक्सियस एंड यू नो स्ट्रेस्ड आउट एंड टेंशन में है। और देन शी सेज कि अगर वो आप उसको नहीं लेकर आए ना तो मैं और मेरा बेटा हम लोग फिर कुछ भी कर देंगे नाउ वी आर ऑल इन स्पिन, कुछ भी कर देंगे मतलब, हाँ। तो अब उसको समझाएं कितना, तो नाउ आई यूज्ड टू गो टू द स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, तो कमांडिंग अफसर मुझे बोला कि नहीं तुम जाके उसको समझाओ। मैं भी जाके समझाया, बट समझने को तैयार नहीं है, एंड ऑफ कोर्स शी इज इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड, तो गाली गुली मुझे भी गाली दे देगी, वहाँ है फिर वो सीओ की वाइफ, फिर कोई और लेडी जाती है, कोई और जाती है, बट शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, अब सब लोग का टेंशन बढ़ रहा है, बिकॉज शी इज ऑल्सो गेटिंग वेरी दिस थिंग, एंड वी आर रियली वरीड कि अगर उसने कुछ कर दिया तो देन वी आर ऑल इन ट्रबल। यू नो मीडिया कैसे बोलेगा, एक अबला नारी, एक छोटा लड़का मिलिट्री वाले वो ऐसी कहानी बनाएंगे, सो अवर सीओ क्या सीनियर्स को भी विल बिकम डिफिकल्ट टू आंसर। बट नाउ व्हाट डू वी डू, तो क्या करना चाहिए हमें, आपको बताओ, व्हाट शुड वी डू? हाँ, राकेश को, भारत की पॉपुलेशन कितनी है भाई, ऐसे कोई गायब होता तो मिल सकता है क्या? और इतने रिसोर्सेज थोड़ी हमारे पास कि सब जगह वो उसी को ढूंढते रहेंगे। तो क्या करें हम लोग, क्या करना चाहिए हमें, व्हाट शुड वी डू? हाँ, सेंटर मैं खुद ही जाके काफ़ी आई वाज ट्राइंग टू है ना, स्पिरिचुअल बात भी बता रहे थे, ये बता रहे थे, बट शी जस्ट वाज नो adamant. Of course she was in a different state of mind, तो she was herself very tensed, and तो समझ ही नहीं रही, मान ही नहीं रही। तो हमें क्या करें? इट्स बिकम एवरी डे दी टेम्परेचर्स आर राइजिंग, एवरीबडी इज इन टेंशन, सीओ वरीड है, हमारे एचओडीज की मीटिंग क्या करें क्या करें। तो फिर नेचुरल क्या है कि सबसे पहले उनके फैमिली को इन्फॉर्म करो, बताओ कि भाई, सो वी गेव ए कॉल देयर, और वहाँ उसके फादर नहीं थे तो उसकी मदर ने उठाया उधर, जो गांव में कहीं कनेक्ट कर पाए हम लोग। तो उधर से 2 लाइन सिंपल, उसका पति वहाँ है, हमने उसके पति के पास छोड़ दिया, कृपया हमें परेशान ना करें, ठक।
दे क्लियरली सेड नथिंग डूइंग, अभी हमको कुछ नहीं करना। अब हम लोग क्या करें? तो बहुत टेंशन। नो, विद एवरी पासिंग डे टेंशन बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। फिर हमारी एचओडी मीटिंग हुई तो एक वन ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने बोला कि सर हम क्या करते हैं कि एक तिरुनेलवेली पुलिस ना, लेडी पुलिस को बुलाएंगे, फोर्सफुली विल टेक हर स्टेशन में और विल ट्रेन में बोर्ड करा दिए भिजवा देंगे। तो मीटिंग थी तो कमांडिंग ऑफिसर ने मेरी तरफ देखा, बोला कि आपकी क्या ओपिनियन है? तो मैंने बोला सर हम ये तो कर सकते हैं, फोर्सफुली वी कैन मेक हर सेट एंड वी कैन, बट ट्रेन अगले स्टेशन पे जब रुकेगी शी कैन ऑलवेज गेट बैक, गेट डाउन, कम बैक, एंड इन फ्रंट ऑफ योर गेट शी डज समथिंग। क्या करोगे आप? बिकॉज पुलिस उससे ज़्यादा थोड़ी करेगी, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ा देगी बस, उससे ज़्यादा तो नहीं करेगी। तो वो तो पॉसिबल नहीं है। नाउ मतलब नाउ इट इज़ लुकिंग वेरी दिस थिंग, उधर उस समय तो सबकी हवा टाइट, अभी करें क्या? बिकॉज एनी डे शी कैन डू एनीथिंग एंड वी डोंट नो। एवरी डे आई यूज्ड टू गो, बिकॉज सीओ मेरे पीछे पड़ा था, नहीं जाओ समझाओ। मैं जाता था, वो मुझे ही गालियां दे देती, कुछ ना, देन आई यूज्ड टू गो, देन आई यूज्ड टू गो। ऑफ कोर्स मैं ही नहीं जाता था, बाकी लोग भी जाते थे। फिर बाद में हमने कुछ ऐसे युक्ति की, सो यू नो इट टुक अस 34 डेज। 34 डेज के बाद वो मानी। फिर हमने उसी जगह जहाँ से वो रहती है उस एरिया का हमारा एक और सेलर और उसकी वाइफ और ये और इसका बच्चा, चारों का रिजर्वेशन कराया और उसको सही सलामत अपने गांव में पहुंचा दी। दैट इटसेल्फ वाज अ बिग अचीवमेंट। बट इन द होल थिंग आई सॉ कि व्हाट मैटर्ड, व्हाट काउंटेड वाज, मैं उसके पास जाता था, मेरे को भी उल्टा सुल्टा सुना देती थी, बट genuinely from my heart I never had any hard feelings or wrong feelings about it, because I knew कि हमारे लिए ये एक टेम्पररी इशू है, आज या कल कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। बट फॉर द लेडी, यू नो, समबडी यूज फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड, डाइवोर्स केस चल रहा है, कल डाइवोर्स होएगा, छोटा बेटा भी है, तो शी इज गॉट ए लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम, तो उनकी तो प्रॉब्लम है ही बहुत बड़ी। तो डिस्पाइट हर reactions and the way she used to talk, shout, you know, and so many times I had gone and I was also given all the, you know, hot stuff, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से उस व्यक्ति के प्रति, उस आत्मा के प्रति हर समय बहुत धैर्यता से और बहुत सकारात्मक, आई ऑलवेज हैड गुड विशेस फॉर हर, एंड दैट वाज समथिंग विच ओनली स्पिरिचुअलिटी कुड गिव। अदरवाइज दैट वाज नॉट माय कोर जॉब। एक बार गए, हमने समझाया, आई कुड हैव टोल्ड सीईओ सर, वो मान रही नहीं, मैं क्यों जाऊं, जस्ट नॉट एग्री। बट इतने टाइम जाने के बाद, इतना सुनने के बाद भी जेन्युइनली आई हैड नथिंग, नो इल फीलिंग अगेंस्ट हर, एंड दैट ओनली स्पिरिचुअलिटी टॉट, बिकॉज आई कुड अंडरस्टैंड कि हर सिचुएशन इज व्हाई शी इज रिएक्टिंग दैट वे, वी आर क्लियर ना। उसको तो इतना समझ में नहीं आता, तो उसके लिए कितनी बड़ी चैलेंज है कि वो हस्बैंड जिसके भरोसे आई वही गायब हो गया। सो द काइंड ऑफ एबिलिटी टू टॉलरेट, द एबिलिटी टू हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस, and the ability to have positive feeling about somebody despite such circumstances, that is what spirituality, meditation and spirituality help with that. And it took us so much time, but we were happy that we could at least safely send it back to, of course, हाँ 2 दिन के बाद राकेश केम बैक। राकेश कम थोड़ी है, उसको भी from his sources he would be knowing exactly क्या हो रहा है। So the moment she left, Mr. Rakesh landed back. So anyway, राकेश के ऊपर we have our own disciplinary proceedings सब हुआ, but that was the, I would say, the irrelevant part. The relevant part was to safely send her back. So the spirituality, it teaches us so many things in everyday life and in anybody's life. Somebody may say कि police, military, इसमें क्या है spiritual? Now when I joined armed forces and I used to have a different lifestyle, तो मेरे बहुत सारे कलीग या जो जहाँ भी काम करते, they were very surprised. I am still a bachelor. So अरे तुम कैसे स्पिरिचुअलिटी में, और ये तो आई रिमेंबर शुरू में व्हेन आई वाज कमीशन्ड एंड हमारा माउंट आबू में कोई प्रोग्राम था,
तो मैंने छुट्टी लिया, मैंने बोला कि भाई हमारे हेडक्वार्टर ब्रह्मा कुमारी में कोई प्रोग्राम है, मैं जाना चाहता हूँ। तो इनिशियल में छुट्टी साइन कर दी। जिस दिन जाना था एक दिन पहले, तो उसको ठीक से समझ में आया मेरे बॉस को, अच्छा उधर नहीं 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 नहीं, कोई तुम्हारा एज क्या है अभी, तुम 25 साल भी नहीं हुआ, कुछ नहीं, दिस थिंग व्हेन यू आर 60 ईयर्स छुट्टी कैंसिल। तो देन आई मतलब थोड़ा सा उनको डायरेक्टली नहीं बताता था। सो मतलब एक मिलिट्री में दिस वी यूज्ड टू थिंक कि ये स्पिरिचुअलिटी तो एक अलग लाइफस्टाइल है, इसका हमारे नॉर्मल लाइफ में तो कोई काम नहीं। बट मैंने देखा कि मिलिट्री की लाइफ में इसका उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना, सिविलियन लाइफ से भी मिलिट्री लाइफ में स्पिरिचुअलिटी इज इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी। अब आई यूज्ड टू थिंक ना, हम लोग कर्म फिलोसफी में बताते हैं हर एक का पार्ट अलग अलग होता है, और जिसका जो जहाँ पार्ट होता है, जहाँ उसका सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन करना होता है, वहीं उसका पार्ट होता है। तो जब मिलिट्री लाइफ में आया तो शुरू में मुझे भी लगा कि मैं ये ना गलत जगह पे आ गया हूँ, आई डोंट नो, बिकॉज देयर वी हैव लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है ना, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर सकता। अभी भी मुझे जब मिलिट्री का बोला तो आई हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू से, बट आई कैन नॉट से बिकॉज इट विल कम अंडर कॉन्फिडेंशियल है, ये है वो है, बिकॉज मिलिट्री की बहुत सारी चीज़ें होती है, हर चीज़ नहीं बता सकते। तो इस लाइफस्टाइल में जब मैं चला, और थोड़े टाइम के बाद 2001 वी हैड दिस, इफ यू आर अवेयर, ब्रह्मा कुमारीज की बहुत सारी विंग्स है ना, मेडिकल विंग, यूथ विंग, कई सारी विंग्स है। तो वैसे ही एक विंग है जो सिक्योरिटी सर्विसेज विंग। जैसे आई सेड ना, आई हैव कम हियर बिकॉज वी हैव अ प्रोग्राम फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन 4th and 5th. So this wing got created in 2001, and the person who was made the chairman that time, one retired Air Force officer, and for quite some years he was dedicatedly staying in Mount Abu after retirement. He had taken premature retirement, and he knew me as when I was from school से मैं आता था पेरेंट्स के साथ, तो मुझे जानते थे। तो देन ही सेड कि देखो हम लोग ने ये जो विंग बनाई है, अब मिलिट्री में प्रोग्राम, स्पिरिचुअल प्रोग्राम करना, पुलिस में तो फिर भी इजी होता है, पैरामिलिट्री में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मिलिट्री तो बिल्कुल ही दे फील कि यू नो स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग वेरी डिफरेंट। जैसे कि तुम लोग ओम शांति शांति बोलते हो, शांति और हमारा काम क्या है, लड़ाई लड़ना, दे आर ऑपोजिट थिंग। शांति, तो आप हमको शांति शांति सिखाओगे तो कैसे लड़ेंगे? बट देन वी हैव टू एक्सप्लेन देम कि शांति इज योर मेंटल स्टेट, है ना, आपका जॉब क्या है, दैट इज नॉट, दैट इज इररिलेवेंट। अभी ऑन शिप आई यूज्ड टू हैंडल मिसाइल्स। अभी लास्ट ईयर वी हैड दिस प्रॉब्लम ना, ऑप सिंदूर, तो पाकिस्तान के साथ था, आर्मी वॉज इन्वॉल्व, एयरफोर्स वॉज इन्वॉल्व, नेवी वॉज रेडी। इफ इट हैड एस्केलेटेड इवन फॉर कपल ऑफ मोर डेज, नेवी वुड हैव गॉट इन्वॉल्व। एज्यूम कि अभी भी बोलते हैं ऑप सिंदूर 2 अभी बचा है, आई डोंट नो। सो एनीवे, अगर नेवी कल को इन्वॉल्व होती है, सपोज आई एम इन शिप एंड माय जॉब एंड शिप इज हैंडलिंग मिसाइल्स, देयर इज अ पाकिस्तानी शिप एंड वी हैव दिस कॉन्फ्लिक्ट, सो वी प्रेस अ बटन हियर and the missile goes and hits the Pakistani ship. Now spirituality teaches कि किसी को भी दुख देना गलत, दुख देना। Now I was instrumental in that missile firing from here, landing there, and that Pakistani ship के ऊपर हिट किया, वहाँ 300 लोग थे और सबकी डेथ हो गई। तो 300 लोग के साथ फैमिलीज, कितना सारा कनेक्शन। सो नाउ दिस एक्शन, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? As per job, it is correct. Spirituality says कि किसी को दुख देना गलत, और यहां तो अच्छा, अगर समझो अभी प्रोग्राम चल रहा है, कोई छोटा बच्चा है, थोड़ा सा ना कभी कभी मस्ती करते हैं इधर उधर, यू से वन सॉट बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं बैठे, ठक करके एक थप्पड़ मार दिया, जाओ बैठो उधर, बैठ गए। नाउ दीस आर 2 एक्शंस, वहां का एक एक्शन और ये एक्शन। Now my question is that both of these actions, are they correct or wrong? Which is correct, which is wrong? This is incorrect. बच्चे को मारा, और फर्स्ट वाला इज करेक्ट। बच्चे को मारा तो थोड़ा सा दर्द हुआ तो 2 मिनट में भूल भी जाएगी, और जो वहां तो 300 पीपल डाइंग, उनके साथ फैमिलीज एसोसिएटेड है, क्या है कितना, उधर तो the amount of grief and sorrow is, you know, there's no comparison. तो गलत हुआ या सही हुआ, है ना? So it doesn't work that way, ना? So
कर्म ना, देयर हैज टू बी सम रूल्स अकॉर्डिंग टू दैट. इट कैन नॉट वेरी सब्जेक्टिवली कि अच्छा ऐसा था तो ऐसा हो गया. सो व्हाट डज स्पिरिचुअलिटी से अबाउट कर्म इज, अगर आपने कोई कमी या कमजोरी के वश कर्म किया, कभी बोलते हैं विकार या कमजोरी के वश, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम वाइसेस, if you have done an action, that becomes wrong. So the definition is this. Now when I am pressing that button, अगर आप देखते हैं ना मेजर वाइसेस बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनमें से कोई भी नहीं था. पर्सनली तो मैं उन लोगों को जानता भी नहीं हूँ, उधर उनके शिप में कौन है क्या है. हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं. आई हैव नो एनिमिटी इन दैट सेंस दैट पर्सनली आई डोंट नो देम ओनली. मैं आपको जानूंगा तो मेरी दुश्मनी होगी. आई डोंट लाइक यू, आई डोंट दिस थिंग, है ना. सो इफ यू सी देयर आर नो वॉइसेस देयर. और यहाँ थोड़ी देर के लिए मेरे को गुस्सा आया तो भी मैंने थप्पड़ मारा, है ना. छोटी बच्ची को थप्पड़ मारा, कब मारा? गुस्सा आया. गुस्सा, एंगर इज वन ऑफ द वाइसेस. सो दिस एक्शन हैज बिकम रॉन्ग, बट दैट एक्शन इज नॉट रॉन्ग. एंड स्पिरिचुअलिटी गोज वन स्टेप अहेड. इट सेज दैट एक्शन विल बी रॉन्ग. अगर वो मिसाइल शिप को नहीं लगी होती, इट बिकम्स रॉन्ग, बिकॉज इट वॉज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द कंट्री. आपका काम था कि आपकी मिसाइल को उस टारगेट को लगना था तो लगना था, वो आपकी ड्यूटी थी. अगर उसने नहीं लगा तो देन यू हैव फेल्ड इन योर ड्यूटी, तो देन दैट एक्शन बिकम्स रॉन्ग. सो इफ यू जस्ट सी इट लाइक दिस, ऐसे ही कोई देखेगा तो बोले अरे वहां तो इतने लोग मर गए और यहाँ ऐसा नहीं होता. तो स्पिरिचुअलिटी इज लाइक है ना कंपस. इट गाइड्स यू कि एग्जैक्टली किस समय हमें क्या एक्शन लेना. लाइफ में तो इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होते हैं, किस समय में क्या करना चाहिए, किसी के साथ हमें कैसे बात करना चाहिए. सो इट विल मैटर. सो नेवी का मैं एक और एक्सपीरियंस सुनाता हूँ कि हमारे यहाँ जो लाइफस्टाइल ऐसा है ना, मॉर्निंग में मेडिटेशन इज वन थिंग वी डू. सो वेर एवर वी आर पोस्टेड इन शिप्स एंड, तो शिप का अपनी एक लाइफ होती है. लाइक हम लोग के आर्मी और एयरफोर्स के भी कलीग्स होते हैं ना. सो लॉट ऑफ दोज पीपल दे थिंक दैट नेवी में तो यू आर एंजॉइंग. क्यों? क्योंकि आर्मी में तो बॉर्डर पे रहे, एयरफोर्स के भी कई सारी पोस्टिंग्स इधर उधर है, और नेवी में तो वी आर जनरली इन बॉम्बे, विशाखापट्टनम, कोच्चिन, गोवा, 4-5 ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज़ है. वी आर 90-95% एंटायर नेवी इज बेस्ड देयर. एंड ऑफकोर्स शिप में जाते तो दुश्मन हमारा कहाँ है हमको, तो वी आर नॉट डायरेक्टली लाइक बॉर्डर पर तो नहीं खड़े कि बॉर्डर के उस साइड वो लोग वो गोली वो चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा. सो दे हैव दिस थिंग कि ना नेवी में, बिकॉज एनडीए में वी आर ऑल टुगेदर, वही हमारे कॉस्मेटिक कोई आर्मी में चला गया फिर, तो वो सोचते हैं कि ना नेवी में दे आर एंजॉइंग, है ना. बट नेवी इज गॉट इज ओन चैलेंजेस. तो कभी कभी हमारा इंटरेक्शन होता है, कुछ आर्मी वाले हमारे पास आए, कुछ हम लोग के उधर गए. तो जब आर्मी वाले हमारे पास आते हैं, शिप गोस, तो हम लोग सेलिंग करते हैं. एंड इफ इट इज़ मानसून एंड इफ द शिप इज स्मॉल, बड़े शिप में थोड़ा कम इफेक्ट होता है, छोटे शिप में ज़्यादा होता है, तो हम डिलिबरेटली थोड़े छोटे शिप में उनको ले जाते हैं. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड सी सिकनेस. होता है ना, कभी कभी आप माउंटेन में जाते हो या ऐसे ड्राइव करते हो तो आपको चक्कर आता है, उल्टी आती है. तो सी सिकनेस इज व्हेन द शिप इज शेकिंग. वहाँ जब मानसून होता है तो सी रफ होता है, तो शिप विल एंड इट इज सो बैड, मतलब कोई नहीं बचता ऐसा. आप कुछ भी खाओगे तो वॉमिट हो जाएगा. इट्स मतलब ऑफ कोर्स इट अफेक्ट्स डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट लेवल. किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, बट इट इज़ व्हेन इट इज़ वेरी रफ, सी इज़ रफ, बहुत बुरा हालत हो जाता है. एंड यू कैनॉट से कि भैया मैं कुछ अभी, अच्छा मेरी अभी आई एम वॉमिटिंग तो मैं अभी काम नहीं करूँगा. काम सबको करना है, सबका वॉचेस है, बिकॉज यू आर एट सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस. कोई मशीनरी संभाल रहे हो तो आप छोड़ के थोड़ी जा सकते हो, आपको उधर भी रहना है. तो 2-3 दिन भी ऐसे करते ना, तो यहाँ हमारे आर्मी के कमांडो सब जीरो हो जाते बोलते. तो वहाँ देयर इज एन एनिमी टू फाइट. यहाँ किसके साथ फाइट करें? कांट फाइट विद योरसेल्फ ना. सो उसका एक ही वन सोल्यूशन इज, अगर आप सो जाओ तो इट डजंट इफेक्ट यू. बट हम तो नहीं सो सकते ना, हमको तो काम भी करना है. वो तो हमारे गेस्ट है, तो वो तो फिर भी सो जाते होते हो, हमको कुछ नहीं करना जब शिप वापस आएगा. तो सो नेवी इज गॉट इट्स ओन चैलेंजेस. सो इसमें भी हमारी जो लाइफस्टाइल होती है ना, तो वो लाइफस्टाइल मॉर्निंग की अर्ली मॉर्निंग, मैंने बोला एक टाइम है हम लोग 4 to 4:45. इस कैंपस में आप कभी भी आएंगे तो आप देखेंगे हर दिन मॉर्निंग को 4 to 4:45 मेडिटेशन रहता.
सो दैट्स ए लाइफ स्टाइल विच जनरली जो भी स्पिरिचुअल इस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शन है और रोज वो स्पिरिचुअल नॉलेज सुनता है तो मेडिटेशन करता है. मेडिटेशन गिव्स यू द स्ट्रेंथ फॉर द एंटायर डे. सो वंस व्हेन आई वाज पोस्टेड इन वन ऑफ द अदर शिप्स, एक INS राणा करके वारशिप था. सो वी सिंस वी वर इन दैट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक साइड, नेवी में हमारी जो ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच मीन्स इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वेपन सेंसर्स, ये सब इस ब्रांच में आता. सो आई वाज नंबर 2 इन माय डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नंबर 2 था. तो शिप व्हेन इट गोस सी में तो उसका बिजली कहाँ से आता, फ्रॉम वेयर डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन शिप इज एट सी? जनरेटर्स, है ना. अच्छा, व्हेन इट कम्स अलोंग साइड, जेट्टी के साइड में आते हैं तो हम रस्सी बांध के आते हैं. तो अभी शिप में पावर कहाँ से आता है? तो अब हम लोग जनरेटर नहीं यूज करते, जेट्टी से हम लोग केबल जो शोर सप्लाई होता है ना, वी टेक दैट, सो दैट प्रिवेंट्स अवर जनरेटर का रनिंग आवर्स होता है. अननेसेसरली वाई वी शुड वेस्ट दैट रनिंग आवर्स. तो वेन एवर वी कम अलोंग साइड हम वो केबल लेते हैं और वो अपने शिप को कनेक्ट करते हैं. अगर 2-3 दिन रह रहा तो शोर सप्लाई से आ रहा है, एंड द मोमेंट यू लीव तो हम डिस्कनेक्ट करते हैं और शिप में जाते हैं, जनरेटर से चलता. नाउ पूरे शिप को सप्लाई करने के लिए दोस केबल्स आर वेरी बड़े बड़े केबल्स होते हैं. 3 फेज होगा तो 3 केबल है. सो वी कॉइल इट एंड कीप इट ऑन द जेट्टी. द मोमेंट द शिप कम्स, फर्स्ट थिंग इज वी कनेक्टेड. तो कनेक्ट करने के लिए इतने बड़े बड़े केबल से पूरा उठा के खींच के शिप में डालना है. तो क्योंकि वो हमारे डिपार्टमेंट का काम था एंड आई वाज, एज आई सेड, नंबर 2 इन माय डिपार्टमेंट, सो इट इज जनरली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि द मोमेंट वी कम द फर्स्ट थिंग इज टू एंश्योर दैट वी गेट कनेक्टेड अप. एंड इफ वी वर टू सेल, द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज डिस्कनेक्ट इट एंड कीप इट. जनरेटर्स ऑन कर देते हैं, उसको डिस्कनेक्ट कर. नाउ उसको कैसे करना है उसका एक प्रोसीजर होता है. मतलब फौज में एवरीथिंग इज गॉट ए प्रोसीजर. कैसे हर चीज को करने का SOP बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एंड इट इज ए वेरी ब्यूटिफुली टाइम टेस्टेड थिंग, बिकॉज यू माइट फॉरगेट समथिंग. अगर आप ऐसे कई रूटीन काम भी करते हो ना, अगर आप सिर्फ मेमोरी से कर रहे हो तो कभी आप भूल जाओगे. बिकॉज जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ तो आई नो 12 थिंग्स आई हैव टू सी, आई कार्ड, पेन, ये वो, ये पर्स, आई काउंट लाइक दैट 1 2 टक 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 टक, देन आई एम श्योर. And the day I'm in hurry, I'll forget my handkerchief. I'll forget one of the things. So ऐसे पर्स भूल जाऊंगा या कुछ भूल जाऊंगा. So anything which got a SOP, तो आप उसमें मिस नहीं करेंगे. तो उसका भी SOP है कि पहले ऐसे आना है, केबल को ये उठाना, पहले उसको ये करना, फिर उसको डिस्कनेक्ट करना, उसको इन्फॉर्म करना, ये करना. सो वन डे व्हेन आई वाज इन दिस मेडिटेशन मॉर्निंग को, तो सडनली मेरे को एक संकल्प आया कि इसके जो ऑर्डर्स है इसको रिवाइज करना और इसको और डिटेल में इसको पब्लिश करना, विच टेक्स केयर ऑफ एवरी स्मॉल थिंग विच प्रोबेबली वुड हैव मिस्ड हियर और समथिंग. सो आई वेंट टू माय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आई सेड कि सर ऐसा है कि ये जो ऑर्डर्स है इसको हम लोग रिवाइज करें. तो ये सेड क्यों रिवाइज करना? तो मैं बोला सर और थोड़ा डिटेल्ड होगा, एलॉबरेट होगा तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा. ही सेज इट इज ऑलरेडी गुड इनफ, हमें दिस इज नॉट रिक्वायर्ड. तो मैंने बोला सर आई फील ऐसा होना चाहिए, बिकॉज मुझे मॉर्निंग को ऐसा टच हुआ कि इसको रिवाइज करना है. तो बट ही डिडंट एग्री. ठीक है, फिर नेक्स्ट डे अगेन द सेम थिंग केम. आई सेड कि सर हम उसको बेटर ही कर रहे हैं क्या है. तो थोड़ा रिलक्टेंटली सेड ओके ठीक है, यू वांट टू टेक आउट अ न्यू ऑर्डर, यू गो अहेड. सो देन आई रिवाइज दोज ऑर्डर्स एंड आई लुक्ड इनटू एवरी निटी ग्रिटी, सब छोटा मोटा चीज सब कुछ को बहुत डिटेल में आई took out the next order and I promulgated that order. ठीक है, चल रहा था. 2 months after this incident, this event, we had an accident. और यही था, हम लोग को जाना था तो केबल को हमको निकाल कर जेट्टी पे रखना होता. तो जस्ट उससे पहले when everybody was collecting for doing this job, so one of the sailors we found, जहाँ शोर सप्लाई का कनेक्शन होता है ऑन द शिप, जंक्शन बॉक्स होता है ना, वेयर वी कनेक्टेड, तो उसके पास में ही वॉज फाउंड लाइंग देयर, मतलब ही वॉज ही हैड फॉलन देयर. एंड समवेयर दिस थिंग, होल थिंग वॉज कि दो और 4 कर दिया, बोला कि इस एक्टिविटी में इसकी डेथ हो गई, ही हैड डाइड. बिकॉज हाई पावर होता है तो उसके बॉक्स के आगे ही वॉज फाउंड लाइंग. चेक किया तो ही वॉज डेड, तो इलेक्ट्रोक्यूट हो गया था. अब पीस टाइम में एक सेलर के डेथ होना, इट्स अ बिग थिंग. तो फोर्सेस में क्या होता है, एक
कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, नेवी में लोग बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बोलते हैं, BOI, 3 ऑफिसर्स का एक टीम आती है. दे विल इन्वेस्टिगेट द एंटायर मैटर, एंड देन इफ दे फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी या एनी नेग्लिजेंस, तो वो लोग फिर कोर्ट मार्शल का ऑर्डर देते हैं. एंड फोर्सेस में कोर्ट मार्शल इज इट्स नॉट आपके बाकी कोर्ट जैसा काफ़ी टाइम नहीं चलता, तो बहुत स्विफ्ट डिसीजन होता है, मतलब फ्यू डेज के अंदर तो दे नो टेक द डिसीजन. ना अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई तो 3 ऑफिसर्स का. नाउ आई एम द हेडमास्टर ऑफ द एंटायर इवेंट. तो अब बट वो तो कोर्ट आने से पहले, बिकॉज ये सेलर की डेथ हो गई. नेक्स्ट थिंग इज ये सेलर जो डेथ हुई उसका नाम जॉनी था, वो हरियाणा में कहीं, हमारा हरियाणा में ORC है, तो ORC के पास में रेवाड़ी में कहीं उसका गांव था. सो वो वहाँ का था. तो देर इज़ वन प्रोविजन, या तो वो पेरेंट्स यहाँ आना चाहें तो वो उनको हम लेकर आ सकते हैं, या फिर वो बोलेंगे कि नहीं बॉडी वहाँ ले जाओ, तो हमको हमारा जॉब है कि वी टेक दैट बॉडी देयर एंड देन दे डू दैट लास्ट राइट्स. नाउ द कमांडिंग ऑफिसर हियर, वो अगेन दिस वाज ए डिफरेंट ईयर डिफरेंट शिप, बट वो मुझे अच्छे से जानता था कि ये स्पिरिचुअल व्यक्ति है. एंड नाउ दिस इज अ वेरी टची इशू, बिकॉज दैट फेलो हु डाइड, द सेलर, ही हैड जस्ट मैरिड एंड 2 महीने के बाद की बात है. और उसके बाद उसका आगे का 1 वीक के बाद उसका छुट्टी भी सैंक्शन था. ही वॉज टू गो बैक, छुट्टी पे जाना था उसको, बट दिस इंसिडेंट हैपेंड. सो नाउ इज वेरी यंग, ही जस्ट मैरिड एंड गाँव में जा रहे हैं. तो कई बार क्या होता है, उधर सेंटिमेंट्स बड़े हाई होते हैं, और एंड दे फील कि नहीं हमारा जब बेटा था गाँव का था, वो उसको मर गया, मार दिया, तो बहुत ऐसा कोई वो नहीं हो जाए. तो अब उसकी बॉडी को ले जाना है, एंड ऑफकोर्स शिप का अपना है कि कुछ एक्टिविटी के लिए जाना था, तो अभी ये कारण से 1-2 दिन और डिले हो गया, लेकिन उसके बाद उसको जाना है, सम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देयर. एंड एज आई सेड, आई वाज द वन हु वाज हैंडलिंग दोज मिसाइल्स एंड ऑल. तो मेरा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने मतलब CO सेड कि नहीं ये ऐसा मैटर है, तो इसमें कोई एक स्पिरिचुअल व्यक्ति जाए, और आई वांट दिस शिव सिंह, I was lieutenant commander that time. The lieutenant commander Shiv Singh should go. He should accompany the body and meet his parents and जो भी करना. Now my head of the department said, sir, इसके बाद वो बहुत important exercise है and his requirement is here. बोला all that is nonsense. वो सब हो जाएगा, कोई और कर लेगा. But this is very important. He will go and he will escort the body there and he will ensure that the last rites are done. बिकॉज वो जानता था कि मैं ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जाता हूँ, और पता चल जाता थोड़े टाइम के बाद. अब नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज एट स्पिरिचुअलिटी ना हम लोग बड़े सब्टल लेवल पे थॉट्स मैटर. आप क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, आप किसी के बारे में सोचते हो तो वो संकल्प पहुँचते हैं आपके पास. हाँ, तो ये कई चीज़ें हम लोग सुनते थे, और पता है कि आध्यात्मिकता उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा सूक्ष्म लेवल. तो फर्स्ट थिंग आई वॉज टोल्ड कि आई हैव टू इन्फॉर्म देयर फैमिली. अगेन हियर उसकी मदर थी, फादर नहीं थे, एंड ऑफकोर्स जॉइंट फैमिली थी उधर गांव में जहाँ रहते थे. सो मैंने कांटेक्ट किया, तो उधर उसकी मदर के पास फ़ोन आया. तो नाउ आई हैव टू से टू ए मदर दैट उनका बेटा मर गया. नाउ दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग. तो मैंने पहले बोला कि मैडम जो जॉनी आप जो हमारे शिप में था, वो एक छोटी सी कुछ एक्सीडेंट हो गया, हल्का सा कुछ चोट लग गई उसको, तो हम उसको अभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं. आई वॉन्टेड टू ब्रेक इट इन पार्ट्स, कि पहले थोड़ा बताएं कि भाई थोड़ा सा कुछ लग गया, और फिर बाद में बोलेंगे नहीं थोड़ा सीरियस है करके. अभी एक साथ तो आई कैन नॉट से कि सीधा ही मर गया ऐसा ना. आई हैव ओनली टोल्ड इतना कि वो उसको थोड़ा सा चोट लग गई और वो अभी घायल है, और उसको हम लोग अभी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जा. एंड दैट लेडी देयर, उसके बाद मैं कुछ बोल रहा हूं तो कुछ जवाब नहीं दे रही. तो थोड़ी देर के बाद एक कोई आदमी ने फोन उठाया, और उसने बोला हेलो कौन बोल रहा है. तो मैंने बोला मैं ऐसे शिव सिंह हूँ, इधर हूँ, और मैं ये जॉनी का हेड ऑफ द ऑफिसर हूँ, डिविजनल ऑफिसर हूँ. तो ही सेड कि आपने क्या बोला कि ये जो माताजी है ये बेहोश हो गई. नाउ आई हैव नॉट इवन टोल्ड हर दैट हर सन हैज डाइड. आई हैव जस्ट टोल्ड हर कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा सा चोट लगी है, हम उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं.
बट द मदर थॉट्स, तो मेरा तो थॉट्स में तो क्लियर था ना कि वो ही इज डाइड एंड आई हैव टू टेल देम, बट शी हैज कॉट दोस दिस थिंग. I am in Visakhapatnam, she is in somewhere in Haryana. Not only she has caught that emotion, it was so severe shock that she fainted. और वो दूसरा व्यक्ति फिर मेरे से हेलो हेलो आपने क्या बोला, ये तो माता जी बेहोश हो गई. सो दैट इज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि कैसे संकल्प कितना, बिकॉज मेरे माइंड में ये बहुत क्लियर था. और वो मदर के उसका सन मरना इज अ बिग थिंग ना, तो हाउ शी इज कॉट दोस इमोशंस. ऑफ कोर्स दिस वाज अ डिफरेंट थिंग. देन आई वेंट देयर एंड हमने किया. लॉट ऑफ पीपल एडवाइज मी नहीं टेक पुलिस प्रोटेक्शन, ये वो, पीपल माइट बिकम वायलेंट एंड, but I didn't feel anything because it was an accident. Ultimately it was an accident, and from our side we will do whatever is best. And so of course everything went smoothly, whatever the last rites was okay. Then now I have returned back. Meanwhile this board of inquiry which has come, which has done all its investigation, interviewed everybody, and now they are waiting only for me. I am the only person who's left, and I am the kingpin. Because the whole operation was done under because I was the in charge of the operation. So since I said I was लेफ्टिनेंट कमांडर, तो जो BOI था उसमें एक कमांडर था और एक और ऑफिसर होता, एक टेक्निकल ऑफिसर होता, एक मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर होता, 3 लोग होते. सो उन्होंने थोड़ा मेरे से बात किया. देन दैट प्रेसिडेंट ऑफ दैट कमेटी ना, 3 जन में से जो BOI का प्रेसिडेंट था, ही शोड मी माई ऑर्डर्स. And he said one thing कि शिव सिंह, अगर तुमने ये ऑर्डर्स नहीं निकाले होते तो आज इस पूरी घटना का ब्लेम मैं तुम्हारे ऊपर डालने वाला था. आई वुड हैव मेड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर थिंग एंड आई वुड हैव रिकमेंडेड बोर्ड ऑफ कोर्ट मार्शल. एंड ही शोड मी माई ऑर्डर्स. नाउ माई ऑर्डर्स वेर 2 months back and very detailed and very exhaustive, which covered every aspect. So one thing was clear ki from my side I have done everything what was correct. And that one order he showed me and he said ki, and after that they make a full report, and report का last एक chapter होता है attribution of blame, और उसमें right from commanding officer सभी का नाम था. and blame does not mean कि मतलब different levels कि in this way this he failed in his duty. There may be small things, he should have done this, he should have done this. सब का नाम था. Little my head of the department का नाम था, and my name was not. Only reason was because those orders which I did. Now why did I take out those orders? Why did I take out those orders? So sometimes there are some things जो टचिंग होती है ना. बिकॉज हियर वी फील कि मेडिटेशन हम उस परमात्मा के साथ कनेक्शन करते हैं, और वो कनेक्शन जो होता है उसमें इट इज़ अ 2-way कम्युनिकेशन. तो कई बार ऐसी कुछ चीज़ होती है वो वहाँ से टच होता है आपको. अगर आपका मन शांत है तो आप उसको कैच करें, शांत नहीं है तो आप, जैसे होता है ना एंटीना में अगर डिस्टर्बेंस है तो कितना भी सिग्नल हो वो कैच नहीं कर पाएगा. तो अगर आपका मन शांत है तो आप कई चीज़ ऐसे कैच करते हो जो नॉर्मल में आप नहीं कर सकते. So for me, अगर वो नहीं होता तो I said I was the in charge of the whole thing, and one sailor had died. This was a different thing. Was actually that sailor had died. That activity had not started. उससे पहले ही unfortunately I think he tripped and वो junction box खुला था और something कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण he was electrocuted and he died. But then once the BOI comes and they have to blame somebody, and then लंबा process होता है करते हैं. But because of this thing I got, so I saw कि in my with this lifestyle, meditative lifestyle, in my entire service life, I found that it had helped me in personal life, in my professional life. And the biggest thing is the reason why I felt why I should have been in forces. I was with this spiritual knowledge before going to the forces. But ठीक है, for some reason in आध्यात्मिकता में बोलते हैं ड्रामा में हमारा पार्ट वहाँ था तो हम वहाँ गए. पार्ट यहाँ था तो जरूर कोई अच्छी बात होगी. तो ऐसा सेट 2001 में जब सिक्योरिटी विंग बनी तो आई गॉट एसोसिएटेड विद दैट,
and I got associated. So we used to do programs for the military, paramilitary. So it took a lot of time to build up that reputation that this is something useful in everybody. Initially there was a lot of reluctance. मिलिट्री पैरामिलिट्री में वो सोचते थे ये सब हमारे लिए नहीं है, ये दूसरे लोगों के लिए है, मतलब मिलिट्री लाइफ में तो इसकी ज़रूरत नहीं है, पुलिस वाले सोचते थे हमको नहीं. बट धीरे धीरे हमने देखा वो एक्सेप्टेंस था, एक एक करके बढ़ा, एक एक करके बढ़ा, और बहुत सारे हम लोग जगह कार्यक्रम किया. एंड एक चीज़ है, जब भी हम कहीं कार्यक्रम करते हैं तो वो कार्यक्रम तो अच्छा ही होता है. तो फर्स्ट इज इट्स अ गुड दिस थिंग. सेकेंड इज जो सबसे बड़ी बात थी कि वो हम लोगों का कभी कमर्शियल नेचर नहीं हुआ. You will find a lot of organizations which does program, but then you'll find some fees with their हर program का इतना fees है, ये हम लोगों का कभी कोई fees नहीं था. So that was something which was good. तो हम लोग ने बहुत सारे मतलब एक जैसे BSF ने बोला सारे फ्रंटियर्स में प्रोग्राम करो, CISF ने बोला हमारे सारे एयरपोर्ट सेक्टर सारे इसमें प्रोग्राम करो. तो एवरी डे एवरी ऑफ दिस प्लेसेस हम लोग ने 2-2 दिन का स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमारी टीम जाती थी. सो वी केप्ट डूइंग दैट. एंड फॉर 2001, सो दिस ईयर 25-26 was the 25th year. So there was a silver jubilee. Now the best part I will tell you about the silver jubilee. So when the silver jubilee was there, so we thought ki we have this annual program at Mount Abu, and we said some VIP should come. Now who should come? जो सिक्योरिटी से कनेक्शन सबसे कोई बड़ा आदमी आए. तो हमारे माइंड में था कि एंटायर एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, पूरी बाहर के. सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इज द हाईएस्ट, एंड इंटरनल सिक्योरिटी इज विद होम मिनिस्ट्री, एंड होम मिनिस्टर इज अमित शाह. तो अमित शाह और राजनाथ सिंह. तो हमने सोचा इनमें से कोई एक जन अगर हमारे प्रोग्राम में आए, सो देन इट विल बी ए फिटिंग दिस थिंग ना, 25 years सिल्वर जुबली एंड दिस थिंग. तो बहुत सोचा. अब अमित शाह हैड नेवर कम टू ब्रह्मा कुमारीज. मोर देन 12-13 years इन सेंट्रल गवर्नमेंट. 2013-14 से तो बीजेपी की सरकार है, और उससे पहले ही वॉज गुजरात में होम मिनिस्टर. And Mount Abu is right at the border. So everybody, including Modi Saab, and everybody has come to Mount Abu headquarters. But Amit Shah has never come. And उनको भी बहुत बार invite किया, लेकिन for various reasons he has never come. तो जब ये 25 years हो रहा था तो हमने बोला कि we should call them. तो सबने बोला he is not come for big invitation. तुम्हारा security wing का छोटा सा प्रोग्राम के लिए थोड़ी कोई आएगा. तो बट देन पहले तो उसका अपॉइंटमेंट लेना बड़ा मुश्किल से कोशिश किया, तो अपॉइंटमेंट मिला. तो फिर हम मिले, तो हमारी बड़ी दीदी गई, 3-4 लोग गए. तो हमने उनको बताया कि 25 साल में हमने कैसे फोर्सेस के लिए प्रोग्राम किया, और पूरे भारत में किया, पुलिस के लिए किया, पैरामिलिट्री के लिए किया, सारी फोर्सेस के लिए कैसे किया. और सबसे बड़ी चीज़ कि पूरे इसमें हम लोग ने कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया, कोई फीस ही नहीं है हमारी, और निस्वार्थ भाव से भारत के कोने कोने में सेवा की होगी. तो फॉर द फर्स्ट टाइम ही फेल्ट ओके, ये अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे. तो हमने बोला सर उसके उद्घाटन में आपको आना. तो मंत्री लोग का इस पे नॉर्मली वो ना नहीं बोलेंगे कभी, हाँ हम देखेंगे, कोशिश करें. सो उसने ऐसे बोल दिया. तो अब हमको पता है कि वो अच्छा उसके स्टाफ बोलते हाँ बताएंगे. तो अभी हमको भाई हमारा प्रोग्राम है समबडी शुड कम. तो हम फिर राजनाथ सिंह के पीछे पड़े, डिफेंस मिनिस्टर तो कोई तो आए, बिकॉज 25 years हो रहा था. वी ट्राइड आवर बेस्ट. तो उनको भी अपॉइंटमेंट मिला, उनको भी बताया. तो वो जो इनॉग्रल वाला डेट था तो वो तो उस समय अवेलेबल ही नहीं था, ये सम अदर कमिटमेंट. सो वी सेड क्लोजिंग वैलिडिटी है, उसमें आ जाओ एटलीस्ट वंस समबडी शुड. तो अगेन दैट वाज आल्सो अनसर्टेन, एंड एवरीबडी सेड कि देखो ये सबसे बड़े मंत्री है, ये आपके माउंट आबू में एक छोटे से प्रोग्राम के लिए नहीं आएंगे, बिकॉज विंग तो देयर आर 20 wings. Each wing has got one program. So you cannot expect the biggest ministers to come all the way to Mount Abu. दिल्ली में ही प्रोग्राम होता तो भी चलते. बट हम 25 साल से कर रहे हैं तो हमको फिर ना स्पेशल हमारी भगवान की मदद ऐसे है कि लास्ट ईयर देन 17 April को इनॉग्रल में अमित शाह फॉर द फर्स्ट टाइम केम टू ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर. एंड 4 days के बाद श्री राजनाथ सिंह क्लोजिंग में भी आए. सो एक ही प्रोग्राम में दोनों सबसे बड़े मंत्री आए.
So then you see कि okay your role wherever you are. Initially I also used to think military में मैं तो spiritual organization से जुड़ा हूँ, military में maybe it is not the correct place where I, because everybody does wherever you are fit, wherever आपके सबसे ज़्यादा contribute कर सकते हो. तो मैं जब देखा तो मैंने देखा नहीं, देखो 25 साल जिस भी तरीके से हम जुड़े और हम भी अपना कंट्रीब्यूशन किया, तो रिजल्ट में हमने देखा कि जो सबसे बड़े बड़े मंत्री हमारे इस कार्यक्रम में लाए. एंड नॉट ओनली वो, तो हम लोग तो सरप्राइज थे, हमारे पूरे ब्रह्मा कुमारी से सब लोग सरप्राइज थे. बोला ये अमित शाह जी को तो हम इतने वर्षों से सब ने बुलाया, वो कभी नहीं आया एक और, लेकिन आप लोग के एक छोटे से प्रोग्राम के लिए वो आया. और फिर उसी प्रोग्राम में राजनाथ सिंह आया. सबसे बड़े बड़े यूनियन मिनिस्टर 4 दिन के गैप में आना बहुत बड़ी बात थी. तो परमात्मा का कार्य करते हैं तो हमको ये मदद मिलती है. तो मेरे को विशेष नेवी के लिए खास बोला था, हमारे भाई भी बोल रहे थे कुछ नेवी का सुन. तो मैं इसमें बस एक भाई जी, इसमें तो हम बस है ना एक स्लीप का एक लास्ट वाला एक सॉरी मेरे पास ये है, आई जस्ट. तो माय वन क्वेश्चन इज, स्लीप इज फॉर द बॉडी और फॉर द माइंड? बॉडी के लिए नहीं, बॉडी को रिलैक्स. तो स्लीप दोनों के लिए, बॉडी और माइंड के लिए? ओके. व्हाट शुड आई से, 50-50%? हाँ, 50-50 और 40-60 और किसके फेवर में? बॉडी 70%, माइंड 30%. अच्छा, एक मिनट, सॉरी, मैं एक एग्जाम्पल है इसमें. हाँ ये ओके. सो इफ यू सी दिस, देर आर 2 people, one who is working in the office and one who is working in the fields. तो इन दोनों में इफ यू सी फिजिकल हार्ड वर्क, वो किसान इससे तो बहुत ज़्यादा करता है, बिकॉज ये तो एसी घर में रह रहा है, एसी गाड़ी में आता है, एसी ऑफिस में सारा टाइम. फिजिकल एफर्ट ही वुड हैव डन 10 times more than. नाउ ही इज डन 10 times more एफर्ट. रात को सोने जाएंगे तो क्या ऐसा चलेगा कि किसान 10 घंटा सोए और ये 1 घंटा सोए? बिकॉज फिजिकल एफर्ट तो उसने 1/10 किया ना उससे. ऐसा चलेगा? 6 to 8 hours. नहीं, इस केस में मैं बता रहा हूँ रिलेटिवली, एक ने तो बहुत मेहनत किया ना. फिजिकल एफर्ट तो 10 टाइम ज्यादा, क्या कड़ी धूप में वो हल जो उतरा है. तो आपको क्या लगता है ये 10 टाइम्स ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो नींद में ही विल रिक्वायर 10 टाइम्स मोर देन दिस फेलो? प्रैक्टिकल में क्या होता है, दोनों को नींद चाहिए होती है, दोनों करीब करीब सो, और उसमें भी कई बार किसान कम सोता, वो जल्दी उठ जाता है ना. सो फर्स्ट थिंग इज, जनरली दिस इज व्हाट पीपल थिंक, दैट स्लीप इज फॉर प्राइमली फॉर द, कि इट इज प्राइमली फॉर द बॉडी. करेक्ट? बट स्लीप थ्योरी सेज दैट इट इज प्राइमली फॉर द माइंड. 90% sleep is for the mind. जनरली पीपल डोंट थिंक, दे थिंक कि आज बहुत मेहनत किया मैंने, इधर सामान उठाया तो मैं ये थक गया. नाउ हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? आई जस्ट गिव यू स्मॉल एग्जांपल. एक हिल है, आप उसके ऊपर दौड़ रहे हो, है ना, दौड़ते दौड़ते सबसे टॉप में पहुंचे. अभी आप क्या करोगे? हाँ, ठहर जाओगे. अच्छा, एनीथिंग एल्स, और कुछ करोगे? ओके, नाउ द सेम चीज आई विल गिव यू द वे. आप हो, वही हिल है, आप दौड़ रहे हो, सबसे ऊपर पहुंचे और एक क्लिफ है, लेकिन उससे पहले एक रूम है, उसमें एक बेड है, उसमें आप सो रहे हो, आपको नींद आई हुई है और आपको एक सपना आ रहा है, और सपने में आप दौड़ रहे हो. सपना आता है सबको? ओके. सपने में आप वैसे ही दौड़ रहे हो, वही हिल है, और वैसे ही आप दौड़ रहे हो, एकदम टॉप में पहुंचते हो, और फिर अचानक खाई है, क्या करोगे? आता है ऐसा सपना कभी, अचानक ऐसे ऊपर पहुंच गए, या कुछ और ऐसे एकदम सडनली, क्या होगा? शॉक होएगा, डर जाएंगे, नींद से जग जाओगे. बट सेम पहाड़ी है और सेम व्यक्ति है. फर्स्ट केस में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, आप जाके रुक गए और वापस आ गए. अभी सेकेंड केस में यू आर देयर, इट इज द सेम हिल, सेम वही खाई है, अभी आपका रिएक्शन अलग क्यों है? सेम व्यक्ति, सेम सर्कमस्टेंस. अभी आप डर रहे हो, घबरा रहे हो, तो उसका एक ही रीजन है कि आप जब टॉप में पहुंचते हो
आपको रुकना है, रुकने का काम किसका है? कौन डिसीजन लेता है? माइंड। नींद में माइंड रेस्ट पे, तो देर इज नोबडी टू टेक दैट डिसीजन। तो एक्चुअली यू रन एंड देन यू रन अहेड, सो यू फॉल। बट क्योंकि ये कहाँ हो रहा है? ड्रीम में हो रहा है, तो देन आप घबरा के जग जाते। सो स्लीप इज फॉर गिविंग रेस्ट टू माइंड, एट दैट टाइम माइंड इज एट रेस्ट। प्राइमरी पर्पस ऑफ स्लीप इज टू गिव रेस्ट टू माइंड, है ना। अभी एक अच्छी नींद के लिए यू विल फाइंड दैट यू विल हैव टू एंश्योर दैट देयर इज नो डिस्कम्फर्ट टू बॉडी एंड माइंड। व्हेन यू आर स्लीपिंग, बॉडी और माइंड को डिस्कम्फर्ट नहीं हो। कैसे होता है डिस्कम्फर्ट बॉडी को? जैसे कि बहुत गर्मी लग रही है, तो आप क्या करोगे? फैन एसी ऑन करोगे। बहुत सर्दी है तो क्या करोगे? हीटर लगाओगे। लाइट है तो आप लाइट को बंद करोगे। तो यू विल ट्राई टू मेक इट कंफर्टेबल। अगर आपका बॉडी और माइंड सोते समय डिस्कम्फर्ट में है तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। तो आज क्या हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली हम ये दोनों चीज को डिस्कम्फर्ट में कर रहे हैं। पहले क्या होता था, क्योंकि ज़्यादा बिजली नहीं होती थी तो लोगों का लाइफस्टाइल में जल्दी खाना खाते थे और सो जाते। तो आज हम कैसे दोनों को डिस्कम्फर्ट में कर रहे हैं? पहला, बहुत लेट खा रहे हो और बहुत ज़्यादा खा रहे हो। तो खाना आपने बहुत लेट खाया, ज़्यादा खाया, अब खाने को पचाने का काम किसका है? नहीं, खाने को पचाने का तो डाइजेशन सिस्टम, बॉडी। नो, बॉडी को कंफर्ट में है या अभी उसको काम दे दिया ना, सो नाउ इट इज नॉट इन कंफर्ट, इट इज गॉट सम वर्क, इट इज गॉट वर्क। और माइंड को कैसे आप डिस्कम्फर्ट कर रहे हो? माइंड को काम था रेस्ट देना, है ना। यानी रेस्ट यानी अब उसको दुनिया भर के विचार और इस सब से थोड़ा सा अलग होना था। बट आप सोने से पहले पूरे दिन काम किया, आप सोने से पहले अपने टीवी देख रहे हो, न्यूज देख रहे हो, बहुत सारी चीजें, बहुत इंफॉर्मेशन ले रहे हो। नाउ व्हाट विल हैपन? माइंड विल कीप, कुछ इंफॉर्मेशन आया तो कुछ देर तक तो माइंड उसके ऊपर चलता रहेगा ना, तो काफी देर तक माइंड उसके ऊपर सोच रहा है। तो आपने दोनों को डिस्कम्फर्ट करके सोए हो, तो नाउ दिस विल affect your quality of sleep, you know. So I'm just going into the most important thing. So how does this thing work is, when a person is sleeping na, you may connect a lot of instruments and you see the brain waves कैसे वेरी करती है। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है EEG। तो हम लोग देखते हैं कि जब व्यक्ति सोता है तो माइंड, ब्रेन है ना, 4 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में चलता है, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा। So beta is when you're awake, mind is awake, so it is a higher frequency. Then when you are about to sleep, तो comfortable हो रहे हो, तो mind एक लेवल नीचे अल्फा। फिर जब नींद आती है तो माइंड और एक लेवल नीचे थीटा, फ्रीक्वेंसी आप देखें 5 से 8। एंड फॉर सम टाइम इन द एंटायर स्लीप यू आर इन डीप स्लीप, दैट इज कॉल्ड डेल्टा फ्रीक्वेंसी, 2 to 4 हर्ट्ज। सो हर एक व्यक्ति का जनरली ये 4 पैटर्न में जाता है। तो इसको एक ग्राफ में दिखाया हुआ है ना, ये एक ग्राफ है। एक्चुअली इफ यू अंडरस्टैंड दिस वन ग्राफ यू विल अंडरस्टैंड ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्लीप। नाउ व्हाट इज दिस ग्राफ? आप उसके एक्स एक्सिस में देखोगे, सॉरी, एक्स एक्सिस में देखोगे तो 11 PM से मॉर्निंग 6 AM, करेक्ट। सो ए पर्सन इज स्लीपिंग एट 11 PM एंड इज वेकिंग अप एट 6 AM। और उसके वाई एक्सिस में देखोगे तो ये स्टेट 1, 2, 3, 4, 1 इज व्हेन इज अवेक एंड 4 इज व्हेन इज डीप स्लीप। नाउ जब ये चेक किया तो व्हाट वी केम टू नो, फर्स्ट चीज इज वी ऑल व्हेन वी स्लीप वी नेवर स्लीप कंटिन्यूसली, वी स्लीप इन साइकिल्स एंड अ साइकिल इज रफली अराउंड 100 मिनट्स। तो जब शुरू में मैंने बोला ना, कोई भी बोलता है मैं 5 घंटा सोता हूँ, 6 घंटा सोता हूँ, तो ये सब आंसर्स गलत। यू स्लीप फॉर रफली 100 मीटर्स की साइकिल में आप सोते हो। तो आप उसमें आप देखेंगे ना, तो सो यू सी, यू नो, व्यक्ति जागा हुआ है और धीरे धीरे वो गहरी नींद में जा रहा है, फिर वापस ऊपर आता है। ये थोड़ा सा पोर्शन ग्रीन, इसको रेम स्लीप बोलते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। अगेन ही गोज डाउन, अगेन ही कम्स, अगेन डाउन, अगेन कम्स। तो नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है इज दिस डीप स्लीप। तो इस 100 मिनट्स में आई जस्ट, what is this? This is roughly 100 minutes. इसमें I said when is awake, beta frequency, light sleep, true sleep and deep sleep. And of course one is that REM sleep. So this deep sleep, this is the most important part of your sleep. This is around 20 minutes in that 100 minutes ka cycle. So actual rechargement of mind,
refreshment of mind is this deep sleep. If you sleep and you don't get this deep sleep, तो you will not feel refreshed. जैसे आप बस में कहीं जा रहे हो, आप सो रहे हो, पूरा टाइम कुछ काम नहीं है, लेकिन इतना डिस्टर्बेंस है, तो एक्चुअली इज व्हाट इज हैपनिंग, यू आर ट्राइंग टू गो टू डीप स्लीप, बट वो कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, आप उठ रहे हो, तो यू आर नेवर एबल टू गेट दैट डीप स्लीप. सो इवन इफ यू स्लीप फॉर 8 or 9 hours, व्हेन यू कम टू दी लास्ट स्टेशन, घर जाओगे तो सबसे पहले आप जाके क्या करोगे, सोओगे, बिकॉज पूरी रात सोए बट थकावट है, उसने, इट इज नॉट रिफ्रेश्ड यू. So this deep sleep is what is very important. So now again, if you see the cycle, in first cycle you get this deep sleep, second cycle you get this deep sleep, third cycle you get this deep sleep. But कम हो जाता है, 20 मिनट होगा तो करीब 10 मिनट होगा. But after 3 cycles you don't get this deep sleep. कुछ हद तक ये थोड़ा सा थीटा मिलता है, and उसके बाद तो ये भी नहीं मिलता. So I'll repeat, the entire purpose of sleep is to recharge your mind. Mind is recharged in deep sleep. Deep sleep you get for 3 cycles. One cycle is of how many minutes? 100 minutes. 3 cycle is of how many minutes? 300 minutes. 300 minutes is how many hours? 5 hours. So sleep theory says कि if anybody gets 5 hours of sleep, that is enough. Majority of us think 6 to 8 hours. है ना? एंड इससे भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्पेशली जब हम लोग फोर्सेस में करते हैं वेयर यू नो दे हैव दिस शिफ्ट सिस्टम, कभी रात को ड्यूटी कभी होती, उनको इस बात का बहुत टेंशन रहता है, हमें नींद नहीं आती. बट एक्चुअली क्या होता है, वो भी साइकिल्स में सो रहे हैं. हम लोग साइकिल्स में सोते हैं, वो रात में 2 साइकिल्स होते होंगे, दिन में 1 होता है, बट उसको वो पता नहीं. तो वो क्या सोचता है कि स्लीप मतलब रात को 10 बजे सोना, सवेरे 5-6 बजे उठना. तो वो तो मैं कभी कर ही नहीं पाता, बिकॉज मेरा शिफ्ट सिस्टम ड्यूटी होता है. तो ही इज गॉट दैट टेंशन एंड स्ट्रेस कि मैं तो कभी सो ही नहीं पाता. एक्चुअली दैट इज मोर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दैट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. वरना वो सो रहा है, दैट इज नॉट एन आइडियल केस. आइडियली वन शुड स्लीप एट ए स्ट्रेच ओनली. चलो हर चीज आइडियली तो नहीं मिलता, लेकिन अगर मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो मैं उस बात का बहुत टेंशन लेता हूँ, है ना. अब आप बोलेंगे 5 घंटा नींद, मतलब जनरली पीपल थिंक इट इज लेस. But as I said, na, lot of this place, when we go to Mount Abu headquarters, so I've seen lot of departments and all, वो लोग का ऐसा काम होता है, पूरा दिन वो काम करते हैं, रात को 10-10:30 सोते हैं और मॉर्निंग 3:30 को जो उठ जाते हैं, और एवरी डे फॉर सो मेनी ईयर्स दिस इज देयर रूटीन, एंड दे वेरी फिट, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो 5 hours sleep is, it is not just theoretical, practical में I have seen people very comfortably doing it. And बट प्रोवाइडेड आपको स्लीप, वो 5 hours भी साउंड स्लीप हो ना. अगर ऐसे कोई 7-8 घंटा सोए और स्लीप साउंड स्लीप नहीं है, तो सो दिस वन इंफॉर्मेशन इफ यू हैव, देन यू विल फाइंड. सो द होल थिंग इज अबाउट, यू नो, द एंटायर डे द माइंड इज गेटिंग डिस्चार्ज्ड एंड देन यू रिचार्ज इट. आज ये रिचार्ज का प्रोसेस प्रॉब्लम हो गया कि स्लीप का जो हर एक का स्लीप का साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है. और द बिगेस्ट रीजन लास्ट 25-30 years इज दिस टेक्नोलॉजी. इतना सारा इंफॉर्मेशन, मोबाइल एंड मीडिया एज कॉस्ट, ये माइंड को कंटिन्यूस एंगेज कर रखा. तो जैसे होता है ना, एक ऐप हो और 10 ऐप हो तो बैटरी कितना जल्दी डिस्चार्ज होता है, तो माइंड का ये जो डिस्चार्ज रेट है ना, वो बहुत फास्ट. और दिस हैज हैपेंड लास्ट 30 years एंड दिस हैज गॉट, मतलब आज की डेट में कोई बोल ही नहीं सकता कि मुझे इफेक्ट नहीं हो रहा. इट इज लाइक इफ द एयर इज गॉट पोल्यूटेड, आप कहीं भी रहोगे, सांस तो लेना ही है, एंड सांस लोगे तो पोल्यूटेड एयर है, तो आपके हेल्थ को इफेक्ट नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता. सो वन हैज टू कॉन्शियसली नाउ वर्क टू, यू नो, ओवरकम दिस. सो देयर आर ओनली 2 ways to, you know, reduce this effect. One is we have to understand that mind में unnecessarily का दुनिया भर का आप इंफॉर्मेशन लेने से आपका काम नहीं चलेगा. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट वॉट एवर मीडिया कंटेंट यू आर, यू नो, ऑब्जर्विंग. सेकेंड इज देर इज ए सिंपल कनेक्शन. पॉजिटिव थॉट होगा तो इट विल बी स्लो, नेगेटिव थॉट होगा या वेस्ट होगा, इट विल बी फास्ट. सो द एबिलिटी टू थिंक पॉजिटिव एवरीवेयर. एंड मेडिटेशन इज वन वे where you're slowing down your thoughts and you're making it powerful. Actually, meditation is all about thinking positive and elevated thoughts. What kind of thoughts? That spirituality gives us that, you know, input कि किस तरह के संकल्प से हम अपने स्थिति को श्रेष्ठ बना सकते. तो अगर हम थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल में, जैसे व्हाट वी से कि रात को सोते समय अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव संकल्पों के साथ सोएं, तो आप देखेंगे आप थोड़ा सा
change in lifestyle will make a big difference in everyday's life. Because I said ना, नींद it is stress. हर दिन कुछ भी करोगे तो माइंड स्ट्रेस होता है, यानी बैटरी वीक होती है, और हर दिन को स्ट्रेस को निकालने का जो कुदरत का गॉड गिफ्टेड थिंग इज स्लीप. पर अगर वो स्लीप का ही क्वालिटी डाउन है, देन वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज एवरीडेज मेडिसिन. और हर दिन अगर वो मेडिसिन बराबर नहीं मिल रहा, प्रॉब्लम. ठीक है. सो आई टुडे प्राइमरली आई वाज टोल्ड कि इवन दो द सब्जेक्ट वाज दिस, बोला कि आप नेवी से हो, नेवी से डिफरेंट थिंग, तो आप नेवी के बारे में ज़्यादा बताओ. सो इन द लिमिटेड टाइम आई कुड नॉट कवर मच, सो आई विल क्लोज इट एट दिस. बट द जिस्ट आई हैव टोल्ड. एक आध क्वेश्चन है विच आई टेक. बताइए. आप सिस्टर आ सकते हैं. हाँ, या टू क्वाइट सम एक्सटेंट. Because the principle of why do you get recharged in sleep? It is because for some time you are disconnected with the 5 organs. आप थोड़ी देर के लिए इन कर्मेंद्रियों से न्यारे होते हो. जब आप सोते हो तो आपको कुछ दिखता नहीं है, सुनता नहीं है ना. अगर बहुत ज्यादा कोई आवाज होगी तभी आपको सुनेगा. तो you're partially disconnected with your 5 senses, and that is the key टू रिचार्ज. अगर आप कर्मेंद्रियों से कुछ समय के लिए अलग हो सकते हो तो आप वापस रिचार्ज हो सकते हो. मेडिटेशन इज ऑल अबाउट कॉन्शियसली फॉर सम टाइम ट्राइंग टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस फिजिकल बॉडी. 5 कर्मेंद्रियों से अलग होते. तो हमारी एक दादी जानकी थी, शी वॉज द चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज. तो उनको जब EEG पैटर्न चेक किया ना उनका, नाउ वी आर अवेक. अवेक में हमारा 13 to 30 हर्ट्ज होता है. दादी जानकी के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट 1978 में किया, when she was awake and when she was talking, she was displaying delta frequency. delta frequency हम लोग कब डिस्प्ले करते हैं? स्लीप में भी थोड़ा सा टाइम डिस्प्ले. and she was awake and she was talking and she was displaying that. and उनसे पूछा आप ऐसे कैसे करते हो? तो बोला कि मेरे को मेडिटेशन का बहुत उमंग है और वो बहुत समय से तपस्या करती थी. तो द माइंड को स्लो करने की अगर वो कैपेबिलिटी है तो इट विल हेल्प. इट विल हेल्प. Anybody, any other question? हाँ. थॉट्स को कैसा कंट्रोल करना? थॉट्स देखो, थॉट्स को रोक नहीं सकते आप, है ना. ब्लैंक नहीं हो सकता. बस थॉट्स को चैनलाइज कर सकते हो, किस तरह के संकल्प हम रचे. तो आध्यात्मिकता में हमें वो इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें वो ज्ञान मिलता है कि किस तरह से अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बना. जिससे मैंने कहा ना, आप अपने संकल्पों को श्रेष्ठ और एलिवेटेड बनाते हो तो एक पॉजिटिव होने के कारण स्लो हो जाते हैं और फिर वो कंट्रोल में होते हैं. नेगेटिव और वेस्ट बहुत फास्ट जाता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा. पॉजिटिव और एलिवेटेड आपके कंट्रोल में आए, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. आई थिंक टाइम हो गया. ओके, थैंक यू. ओम शांति. Thank you, brother. So, in the interest of the time, we park the questions, and I think everybody has got a fortune today to hear the real-time experience. So, like Brother Shiv was saying, right, it's not very easy to get to know the Navy experiences, right, the first-hand experiences, and also telling us about that the short trick or the what do you say, the secret formula of the good and sleep, right? I think that was a key takeaway. So thank you, brother. Let's give one more round of applause. And for managing stress, I think, brother, as a civilians, we focus on the stress, but the army and the navy who protect us, right, they have to find a balance between the stress and the responsibility at the same time. And we primarily just focus on the stress part. So with this, we close out the evening today.